दिल दे हर कोने विच, 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 दिल दे हर कोने विच तेरा वासा सतगुर जी। दिल दे हर कोने विच तेरा वासा सतगुर जी। तां भी मन रहिंदा है मेरा प्यासा सतगुर जी। सतगुरु जी तेरा नाम नवा सतगुर कोई आलस नहीं मैनू। एक आसरा चाहिदा कोई लालच नहीं मैनू। तेरा नाम नवा सतगुर कोई आलस नहीं मैनू। एक आसरा चाहिदा कोई लालच नहीं मैनू। सिर ते हथ रख देवो तरवासा सतगुर जी। सिर ते हथ रख देवो तरवासा सतगुर जी। तां भी मन रहिंदा है मेरा प्यासा सतगुर जी। तां भी मन रहिंदा है मेरा प्यासा सतगुर जी। दिल दे हर कोने विच तेरा वासा सतगुर जी। तैनू वेख वेख के भी मैनू समझ ना आउंदा ए। एक तेरे बिना सतगुर कुछ होर ना पाउंदा ए। तैनू वेख वेख के भी मैनू सबर ना आउंदा ए। एक तेरे बिना सतगुर कुछ होर ना पाउंदा ए। देवो सबर संतोख मैनू एक पासा सतगुर जी। देवो सबर संतोख मैनू एक पासा सतगुर जी। तां भी मन रहिंदा है मेरा प्यासा सतगुर जी। तां भी मन रहिंदा है मेरा प्यासा सतगुर जी। दिल दे हर कोने विच तेरा वासा सतगुर जी। सतगुर जी नैना नू अथरू नहीं देवो हासा सतगुर जी। सुख दुख झूठे धन भी झूठा झूठी मोह माया सच्चा मन का वो कौन जहाँ प्रेम रतन पाया प्रेम रतन पाया।
रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, रत मिलन की लायो, प्रेम रतन धन पायो, मैंने प्रेम रतन धन पायो। क्या मैं दिखा दूं या मैं छुपा लूं, जो धन है मन में ये भी न जानूं, बजने लगे क्यों सरगम से तन में, खुशियां हैं आंगन में, चेहरे पे आई मेरे रंगत गुलाल की, लगा रंग जो तेरा हुई मैं कमाल की। प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, मन गगन पर छाया, प्रेम रतन। ਡੈਲਸ ਦਾ ਜਾਪੇ ਤੂੰ ਫਰੂਟ ਸੋਹਣੀਏ, ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਪਰੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੋਹਣੀਏ। ਹੋ ਡੈਲਸ ਦਾ ਜਾਪੇ ਤੂੰ ਫਰੂਟ ਸੋਹਣੀਏ, ਨੀ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਪਰੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੋਹਣੀਏ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁਸਨ ਕੀ ਕਾਰੇ ਕਰੂਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੋੜਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਂਗੂ ਨਿਕਰੀ ਦਾ। ਜੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਗੱਭਰੂ ਹਲਾਕ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਪਲਾਜ਼ੋ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਦਾ। ਜੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਗੱਭਰੂ ਹਲਾਕ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਪਲਾਜ਼ੋ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਦਾ। ਲੱਖ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲੇ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਨੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਰਮ ਜਾ ਰੱਖਦੀ ਸਲੂਕ ਨੀ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲੇ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਨੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਰਮ ਜਾ ਰੱਖਦੀ ਸਲੂਕ ਨੀ। ਸੂਟਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਐ ਤੂੰ ਇੰਡ ਕਰਦੀ ਨੀ, ਤੇਰੇ ਮਾਡਰਨ ਮਨਾਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਨਖਰਾ ਤਾਂ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਪੀਕ ਤੇ ਨੀ, ਮੁੰਡੇ ਪੱਟੇ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਲਿਆ। ਨਖਰਾ ਤਾਂ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਪੀਕ ਤੇ ਨੀ, ਮੁੰਡੇ ਪੱਟੇ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਲਿਆ। ਕੱਲ ਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਜੰਪ ਸੂਟ ਤੋਂ, ਜੀਨਾ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਪਿਆ ਏ ਡਰਿਆ। ਟਰੈਂਡ ਕਰੇ ਐਂਡ ਤੇਰਾ ਕੋਰਸ ਰਕਾਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕਰਿਆ। ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਐ ਪਰਿੰਦੇ ਉੱਡਨੇ, ਬੋਲੇ ਨਖਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇਰਾ ਨਿਖਰੀ ਦਾ। ਜੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਗੱਭਰੂ ਹਲਾਕ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਪਲਾਜ਼ੋ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਦਾ। ਜੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਗੱਭਰੂ ਹਲਾਕ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਪਲਾਜ਼ੋ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਦਾ। ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਤਰਾ ਵਾਲਿਆ। ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨੀ ਐ, ਨੀ ਫੱਬਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਉਣੀ ਐ। ਡੱਕਦੀ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨੀ ਤੂੰ ਠੱਗ ਬਣ ਕੇ, ਘੁੰਮਿਆ ਨਾ ਕਰ ਨੀ ਅੱਗ ਬਣ ਕੇ। ਦਾ ਸ਼ਿਵ ਜੋਤ ਨੂੰ ਕਰੇਜ਼ ਲੁੱਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨੀ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੀਦਾ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਗੱਭਰੂ ਹਲਾਕ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਪਲਾਜ਼ੋ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਦਾ। ਜੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਗੱਭਰੂ ਹਲਾਕ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਪਲਾਜ਼ੋ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਦਾ।
ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣਿਆ ਕਦਰ ਕਰੀਦੀ ਨਖਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣਿਆ ਕਦਰ ਕਰੀਦੀ ਨਖਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਲੰਘਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਗਲ ਚੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਖ ਤੇਰੀ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਐ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਹਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖਮਾਰੀ ਕੀਦੀ ਚੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਐ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਹਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖਮਾਰੀ ਕੀਦੀ ਚੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਐ ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਦੀ ਰੰਗ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰੀਦੇ ਸੋਹਣਿਆ ਕਦਰ ਕਰੀਦੀ ਨਖਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣਿਆ ਕਦਰ ਕਰੀਦੀ ਨਖਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣਿਆ ਕਦਰ ਕਰੀਦੀ ਨਖਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ Desi Roots ਉਹ ਕੰਦਾ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਕੱਢਤੀ ਪਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਚਿੱਤ ਨਾ ਕਰੇ ਆਂਡਣਾ ਗਵਾਂਡਣਾ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਚੰਦਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾ ਪਰੇ ਆਂਡਣਾ ਗਵਾਂਡਣਾ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਚੰਦਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾ ਪਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੱਟਾ ਪੱਕਿਆ ਅਸੂਲ ਤੇਰੀ ਨਾਰ ਖਰੀਦੇ ਸੋਹਣਿਆ ਕਦਰ ਕਰੀਦੀ ਨਖਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣਿਆ ਕਦਰ ਕਰੀਦੀ ਨਖਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣਿਆ ਕਦਰ ਕਰੀਦੀ ਨਖਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ ਐਂਡੀ ਧੁੱਗੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਨਿੱਤ ਬਹਿਣੀ ਉੱਠਣੀ ਮਲੀਨੀਅਮ ਟੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤਕੜੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਏ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦਾ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਝਗੜੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਏ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦਾ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਝਗੜੇ ਕਿਹੜੇ ਯਾਦ ਕਰ ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਦਿਨ ਸੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਸੋਹਣਿਆ ਕਦਰ ਕਰੀਦੀ ਨਖਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣਿਆ ਕਦਰ ਕਰੀਦੀ ਨਖਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣਿਆ ਕਦਰ ਕਰੀਦੀ ਨਖਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ कुछ लोगों को आप इस लाइन को इस लाइन में खड़े हो जाओ बहन जी आप भी खड़े हो जाओ हाँ ऐसे खड़े हो जाओ ये बस बीच में रास्ता छोड़ करके ऐसे हाँ ऐसे खड़े होना सभी ने तो मैं बोलूंगा महाकारुणिक बुद्ध की आपने बोलना करना हो महाकारुणिक बुद्ध की 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 हाँ सभी ने पुष्प रखना है हाँ दो सभी तो बंदे जी का पुष्प दे करके आप सभी ने स्वागत करना है अभिनंदन करना है ये हमारी लगभग 2500 पुरानी सभ्यता है जब हमारे गांव में नगर में बौद्ध भिक्षु आते हैं तो इस प्रकार पुष्प दे करके पुष्प शुरू होगी तो आप सभी ने शांत बैठना है तो आपकी समझ में भी आएगा और सबको सुनाई भी देगा। बैठ जाओ सभी आराम से अपना स्थान ग्रहण कर लें। तो हमारे बीच में ये सब ने ध्यान पूर्वक सुनना है तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जी। दादी एक बार इधर देखिए, उधर देख लो एक बार, फोटो खींच जाएगी आपकी। छोड़ दे। ये लोग इधर आजा माता जी। लो जी, हाथों से पकड़। हाँ दोनों हाथों से पकड़ कर। हाँ जी सर, इधर देखना, एक मिनट सामने इधर इस कैमरे में देखना। आप आ जाओ।
हाँ जी इधर देना 1 मिनट सामने। हाँ जी सर इधर ओके। मैम इधर देख के सामने ओके। हाँ जी हाँ जी हर्ष बहुत हाँ नीरज नव दंपति थोड़ा आगे पीछे हो ना हल्का एक बार ना थोड़ा बैक हो जाए हल्का यार। लगा लो थोड़ा आगे आ जा, पहले लगा लो कोई थोड़ा आगे आ जा। हाँ थोड़ा सा बैक हो जाओ मैम आप हल्का बैक होना भाई आगे आ जाओ। हाँ बस 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 ठीक। हाथ में ले लो ना दोनों हैंड लगा लो बस इधर देखो मैम इधर देखो ना आंखें बंद कर रहे हो ओके। ऐसे ही पुष्प ले ले, फूल ले ले हाथ में, इसको छोड़। ये तो उनको दे दो दोनों पुष्प ले लो। पहले हाथ में लेके इधर, हाथ में लेके इधर देखो एक बार मैम इधर ठीक है चढ़ाओ। चढ़ाओ। बस आवाज ना करें दे रहे हैं। सभी सबसे पहले 3 बार नमन करेंगे। सभी बोलेंगे बुद्धां नमामि धम्मां नमामि संघां नमामि। अब मेरे पीछे पीछे आप सभी ने बोलना है ओकास वंदामि भन्ते दवारतेन मया कृतं सबं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकृतं सबं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। तृतीयम्पि ओकास वंदामि भन्ते द्वारतेन मया कृतं सबं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। ओकास शीलं तीर्थ में बनते। ओकास अहं बनते तीसरणे सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुपंचशीलं धम्मं याचामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं
गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि समाधियामि अदिन्नदाना वेरमाभियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि धियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि सुरामेर्यमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सभी आराम से बैठिए। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इस विवाह संस्कार का अपना एक महत्व है और यहाँ से जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू होता है। जब एक युवक और युवती को दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने का अवसर मिलता है, हम उसे एक उत्सव के रूप में देखते हैं।
उत्सव इसलिए देखते हैं कि जीवन में बड़ी रोचकता रहती है। व्यक्ति के जीवन में बड़ी आकांक्षाएं रहती हैं, महत्वाकांक्षाएं रहती हैं। हर कोई अपने जीवन को सुखी बनाना चाहता है, समृद्ध बनाना चाहता है, सुखी रहकर के जीवन जीना चाहता है। क्योंकि गृहस्थ जीवन की शुरुआत शादी के बाद होती है, इसलिए व्यक्ति इस अवसर को बहुत ज्यादा महत्व देता है और इसी महत्व की वजह से हम अच्छे से अच्छा करने का सोचने लगे, करते हुए अच्छा दिखने का सोचने लगे, करते हुए अच्छा दिखाने की सोचने लगे और धीरे धीरे यह प्रदर्शन प्रतिष्ठा से जुड़ गया, मान और सम्मान से जुड़ गया। हर व्यक्ति इस अवसर पर अपना सम्मान देखता है कि लोग मेरे घर पर आएंगे, उन्हें कहाँ बिठाऊं, बैठने की अच्छी व्यवस्था करूं, सुखद व्यवस्था करूं, सर्दी गर्मी से बचाने का यत्न करूं। आएंगे तो पीने के लिए पानी भी चाहिए, पानी के साथ जलपान की व्यवस्था भी करूं, फिर भोजन भी चाहिए, फिर सोने की जगह भी चाहिए। इतने लोग इकट्ठे होंगे तो कुछ संगीत भी चाहिए, संगीत के लिए व्यवस्था भी चाहिए, उसके साथ नाचने वाले भी चाहिए। इतने लोग आएंगे, अंधेरा हो जाएगा तो रोशनी भी चाहिए, रोशनी की भी चकाचौंध चाहिए। इतने लोग आएंगे तो कपड़े भी चाहिए, कपड़े भी सुंदर चाहिए। हर व्यक्ति ये सोचता गया और सोच के साथ कुछ न कुछ जुड़ता चला गया। पानी पिलाने लगे, पानी के साथ ठंडा पिलाने लगे, ठंडे के साथ गर्म पिलाने लगे, गर्म में बोतल भी आ गई, ठंडी और गर्म भी हो गई, कुर्की शुरू हो गई। पहले महिलाएं गीत गाती थी, वो नाच लेती थी। अब नाचना अब भी है, डीजे बजे तभी नाचे, और नाचेंगे तो हुड़दंग भी होता है। पुरुष बिना पिए नाच नहीं सकता, पी के नाचेगा तो हुड़दंग करेगा, हुड़दंग करेगा तो पीटेगा, और बारातों की पिटाई भी होने लगी। दूल्हा शादी के लिए जा रहा है, पैदल नहीं चलना चाहिए, घोड़ी ले आए, घोड़ी पर बैठने से उपद्रव भी होने लगे। कुछ कहते हैं घोड़ी पर बैठो, कुछ कहते हैं मत बैठो। एक के बाद एक परंपराएं जुड़ती चली गई और ये जाति की प्रक्रिया, ये विवाह की प्रक्रिया इतनी जटिल हो गई कि विवाह के नाम पर जहां हम सुख की कल्पना करते थे, अब विवाह की कल्पना करते ही दुख आने लगता है। जिस पिता की बेटी जवान हो जाए, बेटा जवान हो जाए, शादी तय हो जाए, अब चिंता सताने लगती है। शादी में तो 10 लाख रुपया खर्च होगा, घर में तो 1 लाख रुपया भी नहीं है, अब 10 कहाँ से लेके आए। अब चिंता है, पैसा मिलना चाहिए, पैसा नहीं मिलेगा तो प्रबंध कहाँ से करेंगे, प्रबंध नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। अब लोग क्या कहेंगे ये भी एक समस्या हो गई। अब लोग ना कहें इसलिए इतना रुपया तो खर्च करना ही पड़ेगा, वरना लोग कहेंगे खाया है तो खिलाना भी पड़ेगा, जैसे हमने मांग करके खाया। आज आप यहाँ आए हो, क्या कर्ज लेके जाओगे? खाना खिलाना कोई कर्ज देना है क्या? आप बुला रहे हो तो लोग आ रहे हैं, बुला रहे हो तो खिला रहे हो, खिला रहे हो तो खा रहे हैं। अब बुला लो, खाना ना खिलाओ तो क्या पैसा मांगेंगे? हमने सामाजिकता को भी कर्ज में बदल दिया, हमारा व्यवहार भी कर्जदार होने का हो गया। अगर कोई बुला ले तो कर्जदार हम हो गए, खा के आए। अब हमारे घर में शादी हुई तो उसे बुलाना पड़ेगा, ये सामाजिक कर्ज हो गया।
तो यूं करके इस विवाह की प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया कि विवाह की कल्पना करने मात्र से ही सीरनसी पैदा होती है उस माता पिता के जिसके पास पैसा नहीं है। अगर घर में प्लॉट है तो वो बेच दो, दुकान है तो वो बेच दो, सोने चांदी के आभूषण है तो वो बेच दो, वो नहीं बेचते तो कर्ज ले लो। अब कर्ज भी शादी के नाम पर बहुत महंगा मिलता है, लोगों को कोई मतलब नहीं आपने कितना कर्ज लिया, कहां से लिया, कैसे लिया। वो तो आएंगे, कुछ खाएंगे, कुछ बिगाड़ेंगे, कुछ पिएंगे, कुछ पिलाएंगे, कुछ लड़ेंगे, कुछ झगड़ेंगे, कुछ नाराज होकर बैठ जाएंगे। वो शादी क्या जिसमें सगे संबंधी नाराज ना हो, जो ज्यादा निकट के वो ज्यादा नाराज होते हैं, पड़ोसी तो बिल्कुल नाराज होकर बैठा रहेगा, मनाने आएंगे तभी मानूंगा। अब शादी के साथ सामाजिक समस्याएं भी हो गई, तो जटिलता बढ़ती चली गई। और शादी के बाद दोनों परिवार जो शादी से पहले सम्मान की बात कर रहे थे, लड़की पक्ष कहता ना जी भाई हमारा भी मान सम्मान है, हम तो कुछ देंगे ही। लड़का पक्ष भी कहेगा जी हमारी भी इज्जत है, मेरे साथ जो बाराती आएंगे मान सम्मान अच्छा करना। अब दोनों मान सम्मान की बात करते हैं, मान सम्मान के लिए दोनों ही कर्ज लेते हैं और कर्ज लेने के बाद दोनों ही कर्जदार हो जाते हैं। शादी के बाद लड़की घर में आती है, फिर खुशियां शुरू होती हैं, महिलाएं गीत गाती हैं, लोग बाग भी खाना खाते हैं। और शादी के बाद अब कर्जदार का काम शुरू हो जाता है। जो कमा रहे थे उसमें से बहुत सारा पैसा तो ब्याज में चला गया, कुछ बचा वो किस्त में चला गया। अब घर में आमदनी घट गई, खर्च बढ़ गया, अब घर में तनाव शुरू हो गया। जो लड़की कल्पनाओं में जी रही थी कि मेरा पति ऐसा होगा, मेरा जीवन साथी ऐसा होगा, मैं सुख से जीऊंगी, और जाके देखती तो घर में तो तनाव रहता है। ससुर भी तनाव में, सास भी तनाव में, पति भी के तनाव में, और वो भी तनाव में। घर पे जाती तो पिता तनाव में, भाई तनाव में, भाभी तनाव में, माँ तनाव में। अब जिस शादी की कल्पना सुखी जीवन की कल्पना थी, अब वो दुख की कल्पनाओं को हकीकत में बदल गई। वो सुख की कल्पनाएं दुख के हकीकत में बदल गई। और आप देखते होंगे समाज का हर व्यक्ति इस सामाजिक बीमारी से प्रताड़ित है, पीड़ित है। हर व्यक्ति कर्जदार हो गया, और किसके लिए कर्जदार हुआ? समाज के लिए। और हर व्यक्ति जानता है कि ये कुरीति है, हर व्यक्ति जानता है कि ये गलत परंपरा है, लेकिन लोग क्या कहेंगे ये डर सताता है। कुछ को लोभ सताता है कि मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, कुछ को डर सताता है, और कुल मिला के कोई कर्ज से मुक्त होना चाहता है तो कोई समाज में प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहता है। बस इसी खेल में ये सारा के सारा हमारे सुख खत्म हो गए। धम्मभूमि ने इस कर्ज से मुक्ति और सुख प्राप्ति का एक आंदोलन चलाया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जैसा कहा, हमने उस बात को समझने की कोशिश की। बाबा साहब ने कहा कि विवाह क्या है? ये विवाह दो परिवारों के आपसी समझौते का नाम है। एक लड़का पक्ष है, एक लड़की पक्ष है। ये दोनों पक्ष एक दूसरे से सहमत होने के बाद रजामंद हो जाते हैं उन दोनों बच्चों को गृहस्थ जीवन में साथ रहने की अनुमति देने की। अब सहमति होना इतनी बात तो थी, इसी कमरे में बैठ के शादी भी हो सकती थी, लेकिन हम कहते ऐसे नहीं होगी। अब शादी के लिए पहले रिंग सेरेमनी करो, जिसे बहुत बड़ाई बोल देते हैं, फिर लगन सगाई की बात हो जाएगी, फिर बारात आएगी, फिर दावत होगी, फिर बारात विदा होगी, फिर घर में जाके भी कुछ होगा। एक छोटे से काम को हमने इतना बड़ा बना दिया कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति दुखी हो गया।
तो बाबा साहब ने कहा कि शादी का ये अर्थ नहीं है, शादी का अर्थ है एक लड़का पक्ष है और एक लड़की पक्ष है, दोनों सहमत हो गए तो बैठ के समझौता करना है। बस आज के बाद ये पति पत्नी के रूप में, जीवन साथी के रूप में साथ साथ रहें। खाना खिलाना तो खिला दो, लेकिन फिजूल खर्ची को रोकना चाहिए। देखते देखते दहेज भी जुड़ गया। हम तो ये देंगे, पहले तो ये देंगे होने लगा, फिर हम ये लेंगे होने लगा। अब दोनों, लेने वाला भी दुखी, देने वाला भी दुखी, और दुख बढ़ गए। शादी के बाद दहेज में मिले सामान को लेकर लड़ाई। सास कहेगी तू क्या लेकर के आई, वो कहेगी कि ये मैं लेकर के आई। अब जो लेके आए वो पसंद नहीं है, जो पसंद था वो मिला नहीं, घर में तकरार हो गई। पति कार चाहता था, मोटरसाइकिल मिल गई, एक और झगड़ा हो गया। बड़ी कार चाहता था, छोटी मिल गई, एक और झगड़ा शुरू हो गया। शादी के नाम पर जो मिलता है और तनाव देता है, सुख नहीं देता। तब बाबा साहब ने कहा कि शादी साधारण तरीके से होनी चाहिए, लेकिन हम शादी में डरने लगे। शादी तो शुभ घड़ी में होनी चाहिए। शुभ घड़ी कौन सी, ये तो पुरोहित बताएगा। उसके पास जाओगे तो वो अपनी किताब खोलेगा, देख करके बताएगा सोमवार को करना, मंगलवार को मत करना। अब उसने शादी बता दी, उसके हिसाब से काम करने लगे और डर पैदा हो गया। अब शादी में भी साया निकलवाते हैं, मुहूर्त निकलवाते हैं। सोचने की बात तो ये थी, क्या पैदा होने का कोई मुहूर्त है? किसी के जन्म होने का कोई मुहूर्त है क्या? किसी के मरने का कोई मुहूर्त है? जीवन की दो ही घटनाएं सबसे अद्भुत हैं, जन्म लेना और मर जाना। जन्म लेने का कोई मुहूर्त नहीं है और वो व्यक्ति 100 साल तक जीता है, तो शादी के मुहूर्त की क्या जरूरत पड़ी? लेकिन बिना उससे पूछे हम शादी नहीं कर सकते। कहते पता नहीं अब शकुन ना हो जाए, तो पैदा होने से पहले भी पूछ लिया होता। लेकिन पूछ किससे दे, उसे खुद नहीं पता। इसके बड़ा चालाक है, पैदा होने का मुहूर्त नहीं निकालता, और बड़ा चालाक मरने का भी नहीं निकालता। आज तक किसी ने कहा कि शनिवार को मत मरना, लेकिन महिलाओं को बता दे वीरवार को सिर मत धोना। वीरवार को सिर मत धोना ये बता दिया, ये नहीं बताया कि वीरवार को कोई पैदा मत होना। डर की दुकान शुरू हो गई। हमने बाबा साहब को समझने की कोशिश की और कहा कि हम समाज में सुखी करना चाहते हैं, तो परंपराएं बदलो। और परंपराएं बदलने का मतलब है सारी परंपराएं बदलो, छोटा भी रखोगे तो दुख होगा। तो हमने तय किया कि लड़का और लड़की दोनों पसंद आ जाएं, दोनों परिवार एक साथ बैठ करके शादी की तारीख तय कर लें। शादी रविवार को करो, शादी छुट्टी वाले दिन करो, और शादी दिन के उजाले में करो। 3 बात तय हो गई। छुट्टी वाले दिन करो, रविवार को छुट्टी होती है, कोई और छुट्टी आ जाए उसमें करो। दिन के उजाले में करो, बिना बैंड के, बिना बारात के करो। इस परिवार ने हमारी ये बात मानी। रविवार को शादी हुई, बिना बैंड के हुई, बिना बारात के हुई। लड़की पक्ष ने भी माना, सफेद कपड़ों में शादी हुई। अब इतना मान लेने से भी बहुत बड़ा बदलाव हुआ। लोगों ने देखा कि शादी ऐसे नहीं हो सकती है। बिना टेंट लगाए शादी हो गई, बुध विहार में शादी हो गई। शादी में जो लोग आए खाना भी खिला दिया, वो अलग बात थी, ज्यादा लोगों को खिला दिया, क्योंकि सारी बात तो हमारी कोई मानती भी नहीं। थोड़ी सी अपनी चला लेते हैं और अपनी में सारी बिगाड़ देते हैं। यहाँ वालों ने भी हमारी सारी बात मान ली, सफेद कपड़ों में शादी की, बिना बारात के शादी की, लेकिन आज की बात बिगाड़ दी। हमने कहा था कि 10, 20, 50 लोगों को बुलाना, अपने सगे संबंधियों को बुलाना, मोहल्ले के लोगों को बुलाना, कुछ भी खिला देना, यहां तक तो ठीक था। लेकिन आप सबको बुला लिए। अब आपके सामने ये बात कहूं कि बात गलत थी तो बुरा लगेगा।
लेकिन बात तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इससे परंपराएं और बिगड़ती हैं। बात ये नहीं कि खाने में कम खर्च हुआ, बात ये है हम शादी को बोझ ना बनाएं। हम शादी को ऐसे बने जैसे बाजार में गए सामान खरीद के ले आए, ऐसे शादी घर से गए शादी करके घर ले आए, बस बात खत्म। लेकिन शादी के नाम पर जो ये आयोजन करते हैं, भले ही आपने बड़ी समझदारी से काम किया होगा, भले ही आपने ज्यादा खर्च नहीं किया होगा, तो भी लोग जो सीखना चाहते हैं वहां वो बिगड़ जाएंगे। आपके यहाँ तो ये गुरु रविदास भवन है, हो सकता है इसका किराया ना देना पड़ा। जिसके पास ये नहीं, वो तो वेंकट हादी करेगा, वेंकट हाद करेगा तो सारे वही काम हो जाएंगे। तो परंपराओं को बिगड़ते हुए, स्वरूप बदलते हुए देर नहीं लगती। तो इसमें मैं ये भी कहूँगा कि शादी के बाद धम देशना तो करो, लेकिन ज़्यादा लोगों को मत भुला। शादी का स्वरूप नहीं बिगड़ना चाहिए। जो पैसा हमारे पास, उस पैसे को बचाओ। अगर हमारे पास पैसा होगा तो क्या होगा? हम सुखी होंगे। एक छोटा सा संदर्भ बताता हूं। एक बार बुद्ध सावधि में थे, जिसे हम श्रावस्ती कहते हैं। उनके पास अनाथ पिंडक गया और अनाथ पिंडक की इच्छा थी, बहुत धनवान व्यक्ति था, कि मैं सारी संपत्ति छोड़ करके मैं भिक्षु हो जाऊं ताकि मैं भी सुखी हो जाऊं। तब बुद्ध ने अनाथ पिंडक को उपदेश दिया कि तुम्हें भिक्षु बनने की जरूरत नहीं है। ये संपत्ति रोग नहीं है, बीमारी नहीं है। जैसे दूसरे साधु संत बोलते हैं ना, धन तो मोह माया है। बुद्ध ने धन को मोह माया नहीं कहा। बुद्ध ने कहा कि धनवान होने का भी सुख है। धन के होने के बुद्ध ने 4 सुख बताए। पहला सुख तो इस बात का होता है कि व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास धन है, मैं धनवान हूं, मैं इस धन से अपने जीवन को सुंदर बना सकता हूं। तो बुद्ध कहते हैं पहला सुख तो इसी बात का है कि मेरे पास धन है। जिसकी जेब में पैसे होंगे, आपकी जेब में 5-4 हज़ार रुपए पड़े हों, मन सुखी रहता है। और जिस दिन जेब खाली हो और बाजार में जा रहे हो तो सोचो जेब में तो 4 आने भी नहीं, क्या करूंगा। पैसे जेब में ना हो तो आदमी दुखी दिखता है, और जेब में पड़े हो तो सुखी दिखता है। ऐसे ही जीवन में आपके घर में पैसा रखा है, आप सुखी रहोगे, मेरे पास तो पैसा है। आपके बैंक में धन रखा है, आप सुखी होगे, मेरे पास तो धन है। तो बुद्ध कहते हैं घर में धन होने का भी सुख है। आदमी खुश रहता है कि मेरे पास संपत्ति है। दूसरा सुख है, व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास तो धन है, संपत्ति है, मैं उसे सुख भोग रहा हूं। गर्मी थी, पंखा लगा लिया, ज्यादा जरूरत पड़ी एसी लगा लिया, पहले पैदल जाते थे कार खरीद ली, मकान छोटा था बड़ा बना लिया। ये संपत्ति होने के सुख है। अगर घर में पैसा ना हो, गर्मी बहुत ज्यादा हो, आपके दुखी होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है ना। तो बुद्ध कहते हैं संपत्ति के भोगने का भी सुख है। अच्छे कपड़े पहन लिए, सुखी होते हो। घर में सुख के साधन ले आए, सुखी हो गए। पहले छोटे वाला मोबाइल था, बड़ा ले आए, सुखी हो गए। संपत्ति के भोगने का सुख, ये दूसरा सुख है। और तीसरा सुख है कर्ज मुक्त होने का सुख। जिसके पास संपत्ति है वो कर्जदार नहीं होता है। जिसके पास पहले धन है वो कर्जदार क्यों होगा? और जो कर्जदार है वो दुखी रहता है, चिंता में रहता है, और जो कर्जदार नहीं वो सुखी रहता है। तो कर्ज मुक्त होने का भी सुख है। आदमी कहता है कि मुझे किसी का देना ही नहीं है, मेरे पास तो अपना पैसा है। दोष मुक्त होने का सुख। अब पैसा घर में है, संपत्ति है, तो उल्टे काम कोई नहीं करेगा। क्यों बुरे काम करेंगे, क्यों चोरी करेंगे? दोष मुक्त रहेंगे। संपत्ति होने से व्यक्ति दोष मुक्त रहता तो सुखी रहता है। और यदि संपत्ति को अर्जित करने में उल्टे काम करने लगेगा, अकुशल कर्म करेगा तो दुखी होने लगेगा।
इसलिए बुद्ध कहते हैं कुशल कर्म करते हुए धनवान होने से सुखी होता है कि मैं निर्दोष हूं। ये 4 सुख हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा समाज बाबा साहब की बात को नहीं मानता, बुद्ध की बात को नहीं मानता, परंपराओं से चली आ रही बातों को मान करके सारे लोग दुखी हो जाते हैं। हम कहते हैं हमारा भाईचारा है। क्या हमारा भाईचारा दावत खाने का ही है? क्या हमारा भाईचारा अपने भाई को कर्जदार बनाने का है? क्या हमारा भाईचारा अपने पड़ोसी परिवार को कर्ज में धकेलने का है? हमने इस बात को समझा और तय किया कि समाज को सुखी होना चाहिए, शादी के नाम पर कर्जदार होकर के दुखी नहीं करना चाहिए। इसलिए परंपराओं को तोड़ने की शुरुआत की कि बाबा साहब ने जैसा कहा हमें वैसा करना है। और बौद्ध बनने के बाद साधारण तरीके के साथ सफेद कपड़े पहन करके शादी करो, बाद में कैसे भी पहनो। रंगीन कपड़े पहनने की मनाही नहीं है, लेकिन धार्मिक कार्यक्रमों में सफेद कपड़े पहनो, हमारी पहचान करती है। मान लो कि उसने 20,000 रुपये कमाए, ला करके पैसे अपनी पत्नी को दे, जीवन संगिनी को दे या माता को पिता को दे, तो घर में सुख आएगा दुख आएगा। अगर कर्जदार है 20,000 रुपया कमाया, 15,000 ब्याज में चले गए, 5 लाख रुपया उधार लिया था, 3 रुपया सैकड़े में 15,000 ब्याज हो गया। अब 15,000 ब्याज में दे दिए, 5,000 रुपया आने जाने में खर्च हो गए, घर में 2,000 रुपये लेकर के आया, तो सुख मिलेगा दुख मिलेगा। ब्याज चुकाया, किस्त तो लौटा ही नहीं, कर्ज सिर पे खड़ा होगा, दुखी रहेंगे। एक दिन की शान और शौकत के लिए पैसा खर्च कर दिया, कर्ज ले लिया, जीवन भर ब्याज चुकाते हो, किस्त लौटाते हो, गरीबी आ जाती है और परिवार की खुशियां खत्म हो जाती हैं। करो कोई मनाही नहीं, अच्छा खाना खिलाओ कोई मनाही नहीं, कपड़े अच्छे पहनो, लेकिन फिजूल खर्चियों को भी रोक देंगे तो बहुत सुंदर जीवन बनेगा। जो पैसा कमाया हो घर में आया, जब चाहे जैसे कपड़े खरीदो, कमा रहे हो तो जब चाहे आभूषण खरीदो, जब कमा रहे हो जब चाहे खाना खिला दो। आपके घर में अच्छी आमदनी है, आपको लगा कि मेरे पास तो बहुत अच्छी आमदनी है, तो कभी भी हमें भी बुला लो, देशना करवाओ, औरों को भी बुलाओ, 1000 लोगों को बुलाओ, खाना भी खिलाओ। वो बुरी परंपरा में नहीं आता। जब आदमी का सामर्थ्य होता है तो कभी भी कुछ करे, धर्म को आगे बढ़ाने का काम करे, समाज को मजबूत करने का काम करे, बस कर्जदार करने का काम ना करे। तो आप सब लोगों से मेरा यही कहना है, शादी की परंपराओं को तोड़ो, बिना दहेज के, बिना बैंड के, बिना बारात के, बिना दावत के शादियां करो, दिन के उजाले में शादी करो, और शादी के बाद भी ज्यादा खर्च मत करो। अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को खाना खिलाना बुरा नहीं है, लेकिन कर्जदार नहीं होना चाहिए। यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं, शादी होने से पहले जब लड़का और लड़की देखने की प्रक्रिया चलती है, उस समय लड़की को भी बोलना चाहिए और लड़के को बोलना चाहिए। लड़की को भी 2 शर्तें रखनी चाहिए। पहली शर्त कि जिसके साथ मेरी शादी होनी है वो लड़का कर्जदार नहीं होना चाहिए, और दूसरी शर्त कि मैं अपने माता पिता को कर्जदार करके नहीं जाऊंगी। क्या लड़की की जिम्मेदारी नहीं है कि शादी से पहले या शादी होने के बाद अपने माता पिता को कर्जदार ना करे? लेकिन जब लड़कियों की शादी की बात चलती है, मैं तो ये लेके जाऊंगी, मुझे तो ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। घर में है तो चाहे कुछ भी ले जाओ, सारा घर ले जाओ, घर में पैसा तो कुछ भी ले जाओ, हवाई जहाज भी ले जाओ, लेकिन घर में पैसा नहीं है, कर्ज लेकर के ले जाओगी तो पिता को कर्जदार करोगी। अगर पिता को कर्जदार करके जा रही हो तो सुखी रहना मुश्किल हो जाएगा। और लड़के को भी चाहिए कि मैं शादी तो करूंगा, लेकिन जो मेरी जीवन संगिनी होने वाली है उसके माता पिता को कर्जदार नहीं करूंगा, और दूसरा मैं खुद भी कर्जदार नहीं करूंगा। बस ये 2 बात बोलना शुरू कर दो। लड़की का परिवार भी कर्जदार नहीं होना चाहिए,
और लड़का भी कर्जदार नहीं होना चाहिए। अगर ये दो बात समझ में आ जाए तो हम शादी के बाद सुख बांटेंगे। अब शादी के बाद मान लो अभी भिजवाता हूं, होगा तो भिजवाएगा, लेकिन पहले ही पिता कर्जदार है, कमाता सारा कर्ज में चला जाता है, दुख सुख में कैसे भागीदार बनेगा? जिसके साथ शादी हुई है वो पहले ही कर्जदार है, उधर पिता को जरूरत पड़ी तो उनका सहारा कौन बनेगा? इसलिए एक संकल्प करना चाहिए कि शादी जैसे आयोजन में किसी को भी कर्जदार नहीं बनना चाहिए और ना कर्जदार बनाना चाहिए। इस अवसर पर मैं महिलाओं से बात करना चाहूंगा। किसी की शादी में जाती हो तुम जाओ, लेकिन 2-3 बातें ध्यान रखो। एक तो कभी खाए तो भी मत देखो, वो कहें देखो ये 5 साड़ियां लेके आई हो, तो बहन जी रखो इनको, ये तो पहनने के काम आएंगी, क्या देना है इनका? मत पूछो कि सोने का आभूषण क्या दिए, कभी मत देखो कि दहेज में क्या दिया। देखना बंद कर दोगे तो देना बंद हो जाएगा। आपके समाज को कर्ज मुक्त करने का है, समाज को विकास करने का है। पैसा कमाएंगे, घर में आएगा तो सुख समृद्धि आएगी। बौद्ध धर्म किसी को नहीं कहता कि धन तो मोह माया है, धन तो सुख का साधन है, लेकिन वो धन ईमानदारी से आना चाहिए, वो धन अच्छे काम करने से आना चाहिए, वो धन लूट खसूट का नहीं होना चाहिए। और आप देखेंगे इस प्रकार शादी होने के बाद दोनों परिवारों में सामंजस्य बनेगा, दोनों परिवारों में प्रेम ज्यादा होगा, आसपास के लोग भी प्रेरणा लेंगे। देखो फलां व्यक्ति ने शादी की, खर्च तो हुआ ही नहीं। अब आगरा वालों को मैं जानता हूं क्योंकि मैं आगरा में बहुत रहा हूं। आगरा में रिवाज है 20 लाख से कम में शादियां नहीं होती। मकान छोटा भी होगा तो शादी बड़ी होगी। मुझे नहीं पता पैसा कहां से आ जाता है। ऐसे में क्या होता है कि हर व्यक्ति कर्जदार हो जाता है। लेकिन इन्होंने हमारी बात मानी, हमें कहा खर्च करना ही नहीं, और इन्होंने नहीं किया। अब इनकी बात, शादी इनकी हुई, चर्चा आगरा में होगी कि देखो हरियाणा वाले मिल गए। कैसे मिले? बिना शादी, बिना पैसे खर्च करवाए शादी कर ले गए। ये बहुत बड़ी बात है। वहां शादियां होती है तो एक एक शादी में 500 लोग आते हैं, और वहां तो बारात भी 4 आती है। गोद भराई करने जाएंगे तो पूरी बारात लेके जाएंगे, कम से कम 80 आदमी होते हैं। गोद भराई के बाद लगन सगाई भी पूरी बारात जाती है, फिर उधर से लड़के वाले बारात लेके जाते हैं, और शादी होने के 3 दिन के बाद लड़की वाले जब लड़की को लेने आते हैं तो बारात लेके आते हैं। 4 बारात आती है वहां पे। फिर 6 महीने के बाद बुरा खाने जाते हैं बारात लेकर, 5वीं बारात। लेकिन अब इनके माता पिता के घर में तो बड़ी मुश्किल हो गई, एक भी नहीं आई बारात। शादी हो गई, एक भी बारात नहीं आई। अब इसको देख करके आगरा के लोग भी सीखेंगे, लेकिन पुंडरी के लोगों को भी सीखना चाहिए कि शादी बिना बारात के करो, बिना बैंड के करो, बिना दावत के करो। शादी के बाद खाना खिलाओ, लेकिन ज़्यादा लोगों को मत खिलाओ, और कम से कम दूर के लोगों को मत बुलाओ। देने का माध्यम बन जाए। शादी के बाद निश्चित हो जाए कि जीवन तो सुखी ही होगा। अगर जीवन साथी कर्जदार है तो घर में तनाव रहेगा, घर में झगड़ा होगा, पति पत्नी के झगड़े होंगे। 6 महीने शादी के बाद अगर जीवन संगिनी को पैसा नहीं दिया तो भूत प्रेत आने लग जाते हैं। पक्की बात है ये। अगर शादी के बाद लड़की के हाथ में पैसे नहीं आए, बाजार जाने का मौका नहीं मिला, खरीदारी कुछ नहीं की, तो झगड़े शुरू हो जाते हैं, तनाव शुरू हो जाता है, बीमारियों का आमंत्रण शुरू हो जाता है। इसलिए शादी के बाद ध्यान रखो, महीना 20 दिन के बाद बाजार में घूमने जरूर जाओ, कुछ खरीदारी भी करो, कुछ खाओ पियो। घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। जब भी झगड़े की नौबत आ जाए शाम को बाजार में घूमने चले जाओ, लेकिन जब तो जाओगे जब हाथ में पैसा होगा। पैसा जब होगा जब बचाया होगा, और बचाने के बाद जीवन सुखी हो जाता है। तो हमारी कल्पना है, हमारी कामना है कि इस प्रकार के काम करने से समाज सुंदर बन सकता है।
एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। हम अपने समाज के लोगों को कर्ज मुक्त कर सकते हैं। कर्ज से बाहर निकालेंगे तो गुलामी से बाहर निकलेगा, गुलामी से बाहर निकलेंगे तो शोषण से बच जाएंगे, उत्पीड़न से बच जाएंगे, किसी का गुलाम बन के काम करने से बच जाएंगे और गुलामों के साथ जो बुरा व्यवहार होता है हम उससे बच जाएंगे। तो शादी की परंपराओं को सरलता के साथ निभाने का हमारा आंदोलन इसी बात के लिए है ताकि हम समाज को एक अच्छी आकृति दे सकें, एक अच्छा स्वरूप दे सकें। ये बौद्ध परंपरा जीवन संवारने की परंपरा है, जीवन को श्रेष्ठ बनाने का आंदोलन है। इसलिए कुछ लोग हो सकता है हमारी बात को अच्छा ना मानते हो, कुछ महिलाएं तो कहेंगी हाँ वो महाराज जी आए थे, बात तो अच्छी बता रहे थे लेकिन अच्छी नहीं लगी, बात तो अच्छी बता रहे थे लेकिन अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जैसा अच्छी लगती थी वो तो हो ही नहीं रहा। और एक बात और बताता हूँ, कितनी देवरानियाँ, कितनी जिठानियाँ, कितनी सास हैं, कितना मर गई, कितना जिंदा, कोई लिस्ट नहीं बनाओगे। और ना लड़की वालों से कुछ मांगोगे कि 4 साड़ियाँ भेज दो, 5 ही भेज दो, नहीं, किसी प्रकार का लेन देन नहीं। अगर पहले ले रखा है तो बाद में चुका देना, उनको लेकर बाजार से दे देना, ये हमारा कर्ज उतारो, क्योंकि परंपराओं को हमें विराम देना है, आगे से लेना भी मत किसी का। ये परंपराएं बोझ बन जाती हैं माता पिता के लिए, जो ठीक नहीं है। इसलिए ज़्यादा विस्तार से बात ना करते हुए मैं दोनों परिवारों के लिए मंगल कामना ज्ञापित करता हूँ कि महाकारुणिक बुद्ध की अनुकंपा इन पर बनी रहे और इन्होंने जो काम किया है, जो साहसिक काम किया है, इसके लिए दोनों परिवारों को मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। इनके सगे संबंधियों को, मित्रों को भी, जिन्होंने इनको सहारा दिया, साहस दिया, और विशेष रूप से मैं आप सब लोगों को भी साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए, इनका हौसला बढ़ाया और इस संदेश को लेकर के आप जब वापस जाओगे तो कोशिश करना आपके परिवार में भी जब कोई सा आयोजन हो तो साधारण तरीके से शादी करना, आपके प्रभाव में भी अगर कोई बात हो तो उनको भी समझाने की कोशिश करना। ये आंदोलन अनंत लोगों के कल्याण के लिए है, बहुत सारे लोगों के भले के लिए है। इसलिए छोटी मोटी बातों को ज़्यादा तवज्जो मत देना। कुछ कमियां रह जाती हैं, कोई अंतिम प्रयास नहीं होता। इस बार कुछ कमियां रहेंगी, अगली बार सुधारेंगे, अगली बार रहेंगी तो और अगली बार सुधारेंगे। कोई भी सुंदर चीज एक बार में नहीं बनती, धीरे धीरे सुंदर करना पड़ता है और ये तो समाज निर्माण की प्रक्रिया है। कुछ कमियां रह जाती हैं, अगली बार ठीक करेंगे। एक बार पुनः मैं सबके लिए मंगल कामना करता हूँ और विशेष रूप से हर्ष बौद्ध और नीरज बौद्ध जो आज की समारोह के नायक नायिका हैं, अपने ग्रस्त जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, इनके इस सुंदर प्रयास के लिए हम कामना करते हैं कि तथागत की अनुकंपा बनी रहे, इनका जीवन सुखी और समृद्ध रहे, निरंतर प्रगतिशील बने रहे और अंधविश्वास से, कर्म कांडों से बचे रहे, ये हमारी कामना है। और विशेष रूप से इनकी नीरज की हर्ष की मम्मी और पापा के लिए कि आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, सही होंगी, कुछ ताने भी मिले होंगे, लेकिन आप लोगों ने सबको सहन किया है एक अच्छे लक्ष्य के लिए, एक अच्छे उद्देश्य के लिए। तो आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला। सभी सत्ता सुखी होंतु सबे होंतु चतुर्निनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमः सबे सत्ता सुखी होंतु सबे होंतु चतुर्निनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा गमः सबे सत्ता सुखी होंतु सबे होंतु चतुर्निनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमः साधु साधु। मेरे पीछे बोलेंगे, दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, दुनिया के सभी प्राणी
सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो, दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो, दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। साधु साधु साधु। सभी 3 बार नमन करें। बुद्धं नमः, धम्मं नमः, संघं नमः। सबका तो निश्चित ही ये बातें हम सभी के समझ में आ गई होंगी, और अगर हम इन बातों को समझ करके अपने जीवन में लागू करेंगे, अपने घर परिवार में लागू करेंगे, निश्चित ही हम लोगों का जो जीवन है वो सुखमय होगा। साधु साधु साधु। तो ये बौद्धों की अपनी 2500 वर्ष पुरानी गौरवशाली सभ्यता है, जिसके अनुसार ही हम जीवन के अपने मंगल कार्य करते हैं। जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान इस सभ्यता के अनुसार जीवन का आचरण करता है, उसका जीवन सुंदर बनता है, अच्छा बनता है। और आज उससे पहले जब भी कभी हमारे घर में, गांव में, नगर में, शहर में कोई बौद्ध भिक्षु आता है तो हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार संघदान भी देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के द्वारा दिया गए संविधान से ही धर्म आगे बढ़ता है, निरंतर गतिमान होता है। और इस प्रकार से ही ऐसे धर्म की देशनाओं को सुनकर ही तो सामर्थ्य अनुसार संविधान करना है। आप 1 बार में, 2 बार में, 10 बार में, कोई दिक्कत नहीं है। बार-बार लेकर के खाएं आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लेट में इतना डालना कि वो बचा ना, क्योंकि बचा हुआ खाना कभी भी काम नहीं आता, और वो 100-200 लोगों का खाना तो ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। इसलिए जिस परिवार ने इसको बनाया है उसने बड़ी मेहनत से इसको कमा करके आप लोगों के लिए बनाया है। Mixing in the house. हो रिंग पा देनी तेरे ऐतकी सियाल मैं, ताही तेरा हुण तो ही रखदा ख्याल मैं। हो रिंग पा देनी तेरे ऐतकी सियाल मैं, ताही तेरा हुण तो ही रखदा ख्याल मैं। गली गली याद तेरी रखूंगा संभाल मैं, रखे ने गुलाब तेरे सारे, गुलाब तेरे सारे। हाय मैं तेरी शैडो बन जावा, नाल नाल रहूंगा मुटियारे। हाय मैं तेरी शैडो बन जावा, नाल नाल रहूंगा मुटियारे। हाय मैं तेरी शैडो बन जावा, नाल नाल रहूंगा मुटियारे। तेरे ने मैं नाल देखी सर ने मैं जोड़ना, इस जन्म फिर रिश्ता नहीं तोड़ना। हो तेरे ने मैं नाल देखी सारे ने मैं जोड़ना, इस जन्म विच रिश्ता नहीं तोड़ना। तेरे हर दुख नू मैं हासे विच मोड़ना, हासे तेनू देने जिन्ने तारे। हाय मैं तेरी शैडो बन जावा, नाल नाल रहूंगा मुटियारे। हाय मैं तेरी शैडो बन जावा, नाल नाल रहूंगा
ਰਹੂੰਗਾ ਮੁਟਿਆਰੇ ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ੈਡੋ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹੂੰਗਾ ਮੁਟਿਆਰੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕਰਾਂ ਤੇਰੀ ਕਦੇ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਤੇ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਕਰਾਂ ਤੇਰੀ ਕਦੇ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਤੇ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੌਂ ਲੱਗੇ ਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਲਾਬੀ ਨੋਟ ਵਾਰੇ ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ੈਡੋ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹੂੰਗਾ ਮੁਟਿਆਰੇ ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ੈਡੋ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹੂੰਗਾ ਮੁਟਿਆਰੇ ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ੈਡੋ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹੂੰਗਾ ਮੁਟਿਆਰੇ ਮਾਲਪੁਰ ਦੇ ਸਿੰਘੇ ਚ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿਖੀ ਐ ਹਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਐ ਮਾਲਪੁਰ ਦੇ ਸਿੰਘੇ ਚ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿਖੀ ਐ ਹਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਐ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਲਵ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਮੁੰਡਾ ਸੋਹਣੀਏ ਟਿਕਾ ਕੇ ਗੱਲ ਮਾਰੇ ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ੈਡੋ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹੂੰਗਾ ਮੁਟਿਆਰੇ ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ੈਡੋ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹੂੰਗਾ ਮੁਟਿਆਰੇ ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ੈਡੋ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹੂੰਗਾ ਮੁਟਿਆਰੇ ਰਿੰਗ ਪਾ ਦੇਣੀ ਤੇਰੇ ਐਤਕੀ ਸਿਆਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਮਜਾਜਣੇ ਕਾਂ ਤੋਂ ਝੂਮ ਝੂਮ ਤੁਰਦੀ ਹਾਏ ਨੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਿੱਲੋ ਜਾਵੇ ਲੂਣ ਵਾਂਗੂ ਖੁਰਦੀ ਹੋ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਦੇ ਹੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਏ ਵੇ ਰੱਬ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵੇ ਓਏ ਲੱਭਣੀ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਜੱਟਾ ਐਨੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਰਕਾਨ ਵੇ ਓ ਸਿਰੇ ਦੀ ਕਟਾਰ ਜਹੀ ਤੂੰ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਲੱਗੇ ਕਾਲਜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾੜੂ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਚ ਜਾ ਡੁੱਬਿਆ ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਸੱਤ ਪੱਤਣਾ ਦਾ ਤਾਰੂ ਨੈਣਾ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਚ ਜਾ ਡੁੱਬਿਆ ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਸੱਤ ਪੱਤਣਾ ਦਾ ਤਾਰੂ ਓ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਬੱਪਣਾ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਬਚਦਾ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਬੱਪਣਾ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਬਚਦਾ ਵੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਚੋਂ ਬਰਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੂ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਦੀਆਂ ਠੇਕਿਆਂ ਚ ਜਾ ਡੁੱਬਿਆ ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਸੱਤ ਪੱਤਣਾ ਦਾ ਤਾਰੂ ਨੈਣਾ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਚ ਜਾ ਡੁੱਬਿਆ ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਸੱਤ ਪੱਤਣਾ ਦਾ ਤਾਰੂ ਹਾਈ ਨੀ ਫੈਂਡੀ ਵਾਲੀ ਜੀਨ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਪੱਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੰਗ ਨੀ ਹਾਏ ਉਹ ਕੱਚ ਜਿਹਾ ਲੱਕ ਤੇਰਾ ਹੋ ਨਸ਼ਾ ਚਾੜੇ ਜਿਵੇਂ ਭੰਗ ਨੀ ਹੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜੱਟੀ ਮਾਰਦੀ ਐ ਜਿਮ ਵੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜੀਰੋ ਜੱਟਾ ਤੇਰੀ ਕੈਲੀਏ ਤੇ ਕਿਮ ਵੇ ਓ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਡੀਰ ਘੁੰਮਦੀ ਕਿਹੜਾ ਉੱਡਦੀ ਕਬੂਤਰੀ ਉਤਾਰੂ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਚ ਜਾ ਡੁੱਬਿਆ ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਸੱਤ ਪੱਤਣਾ ਦਾ ਤਾਰੂ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਚ ਜਾ ਡੁੱਬਿਆ ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਸੱਤ ਪੱਤਣਾ ਦਾ ਤਾਰੂ ਨੈਣਾ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਚ ਜਾ ਡੁੱਬਿਆ ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਸੱਤ ਪੱਤਣਾ ਦਾ ਤਾਰੂ ਕੋਚੀ ਮੇਰੂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇਰੇ ਆਲੇ ਨਾਮ ਲਖਵਾਤਾ ਵੇ ਆਜੋ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ ਜੱਬ ਚੱਟੀ ਨੇ ਮੁਕਾਤਾ ਵੇ ਵਾਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲ ਚੰਨ ਤੇ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਚੱਕ ਦੇਖੂ ਸਾਲਾ ਬਾਹੀ ਵੰਗਣੇ ਪਵਾ ਦੂੰਗਾ ਹੋ ਤੇਰੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਮਾਰਾ ਟਾਈਗਰ ਜੱਟਾ ਕੀ ਰੀਸ ਕਰਨਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲਾਰੂ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਚ ਜਾ ਡੁੱਬਿਆ ਨੀ ਮੁੰਡਾ